Good morning, students. Myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, class 10, chapter number 14, statics. Now, continue. Yesterday, before it, we already discussed about the mean and mode. Now is the last mean part, that is the median. Median is given by this formula. The formula is given by the capital M, is the symbol for the median. Formula is the L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Now what is the meaning of L n upon 2 minus CF and upon F into H? Simply L is the total n is the total number of frequency, means sum of the frequency, and cumulative CF is the cumulative frequency, but here we take in this formula CF is the cumulative frequency of just before previous of median class. L is the lower limit of the median class, F is the frequency of median class, and H is the class mark. You already given in your book NCERT. Now we discuss about one example. Suppose one example is given, class intervals are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and last 90 to 100. And their corresponding frequencies are given 7, 5, 4, 10, 3, 2, 6, 5, 2 and 3. In mod, the only sufficient the class interval and frequencies. But in median, first we find out the cumulative frequency. So how can we distribute the cumulative frequency? Is the very simple. Cumulative frequency we find out like this one. First write this frequency as it is, 7. And now this 7 add this one, 7 plus 5. 7 plus 5 is equal to 12. And also next similarly continue, 12 plus 4. 12 plus 4 is equal to 16. Similarly 16 plus 10 is equal to 26. And 26 plus 3. 26 plus 3 is 29. And 29 plus 2. 29 plus 2 is 31. And 31 plus 6, 37. 37 plus 5. 37 plus 5 is 42. 42 plus 2, 44. Last 44 plus 3, 47. Similarly, also we find out the sum of the frequency 7 plus 5 plus 4 plus 10 plus 3 plus 2 plus 6 plus 5 plus 2 plus 3, that is also 47. यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वन फ्रीक्वेंसीज ऐड करके उसको फ्रीक्वेंसी को सब कॉरेस्पॉन्डिंग उसको अपन क्लास इंटरवल के बेसिस पर corresponding cumulative frequency. 26 is the cumulative frequency of 30 to 40. 16 is the cumulative frequency of class interval 20 to 30. 29 is the cumulative frequency of class interval 40 to 50. हमने यहाँ पर cumulative frequency को कैलकुलेट किया है सभी क्लास इंटरवल के corresponding. यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है? Use the formula. First write the formula L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Complete chapter formulas के बेसिस पर है. मोड का फॉर्मूला आपको याद करवाया है. अब हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं. यहाँ पर भी L प्लस और साथ में हम ले लें n upon 2 minus CF upon F into H. n है टोटल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है n. n is total frequency. Total frequency is 47. So first calculate n upon 2. What is the n upon 2? 47 upon 2, that is 2 and 23.5. ये है important part, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम मीडियन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ आप में ध्यान रखिएगा
n is 47 and 47 upon 2, 23.5. Now find out this 23.5 in which cumulative frequency lie. आपको ये फाइंड आउट करना है ये 23.5 किस cumulative frequency में लाई कर रहा है. देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 7, 12, 16, 26. 16 23 से लेस देन है, बट 26 23.5 से जस्ट ग्रेटर देन है, और आगे चलते हैं तो 29 इससे ग्रेटर देन है. फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि 26 and 29, 16 is the less than 23.5 and 29 is the greater than 23.5. That means ये हमें कंफर्म हो गया कि 23.5 जो है वो 26 में लाई कर रहा है, और ये 26 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट करें तो हमें क्लास इंटरवल मिलेगा 30 to 40. इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास. तो यहां आप लिखेंगे मीडियन क्लास. मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40. इसके बेसिस पर हम लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन क्लास इज 30, हम 30 को कैलकुलेट कर सकते हैं. n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. n/2 फॉर्मूले के बेसिस पर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूं. l हमने फाइंड आउट कर लिया, n/2 हमने फाइंड आउट कर लिया. cf, अब CF पे आपको ध्यान रखना है, ये CF जो है अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF फाइंड आउट कर रहे हैं जस्ट प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. मींस हमने फाइंड आउट किया 26, इससे जस्ट प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 16 है, तो ये CF आपका होगा 16. F is the frequency of median class. Now median class is the 30 to 40 and frequency of 30 to 40 is 10. So write here 10. And H is the class mark. Class mark means difference between median class 30 to 40. वैसे difference सबका same 10 है, तो यहाँ पे H आ गया 10. सभी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कर लिया, केवल आपको वैल्यू पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, और ये फाइनल आपका आंसर होगा. मीडियन क्लास इज L इज द 30 प्लस n/2 23.5 माइनस CF इज 60 डिवाइडेड बाय F इज 10 एंड H इज 10. ये होल पार्ट इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए इन डेसिमल फॉर्म में जो भी है. ये 30 को सेपरेट रखिए, 30 एंड प्लस सॉल्व करते हैं. देखो 10 और 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, इसमें से 16 माइनस कर लो. यहाँ पे अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो 4 + 3 7.5 आपको मिलेगा, और ये 7.5 इसमें से प्लस करो तो 37.5. 37.5 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन. ये आपका आंसर हो गया. एक सिंपल एग्जाम्पल की बेसिस पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन को मैंने कैलकुलेट किया है, और यही मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया है. अब हम चलते हैं एक आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चंस आप चाहें तो ले सकते हैं, और अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा के ले रहा हूँ. चलिए एक सम और करते हैं अपन. चलिए स्टार्ट करते हैं. बुक के बेसिस पर कोई भी सम ले रहा हूं मैं, किसी भी एक रेफरेंस बुक से. Now find the median of the given marks. Now we are given that the marks is given. Marks are given below 10 and below 20, below 30 and below 40 and below 50 and finally below 60. कई बार मार्क्स जो हैं वो आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकते हैं. And now number of students. Now we are given that number of students. ये आपको गिवन है.
4, 10, 18, 4, 10, 18, 28, 40, 28 and then 40, and now last 70. आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देखो बिलो 10 मीन्स 0 to 10 frequency is given already. Below 20 means 0 to 20 is given 10. That means this time complete cumulative frequency is already given. But here we calculate the frequency. How can we find out the frequency? Total frequency आपको already given है 70. मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं. बिलो 10 दैट मीन्स आप यहाँ पे ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए आप पहले क्लास मार्क को कैलकुलेट करिए. क्लास मार्क पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद में उसके बेसिस पर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टेबल में बना रहा हूँ. नाउ क्लास मार्क 10 का गैप चल रहा है तो अपन स्टार्ट करते हैं. बिलो 10 दैट मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. बिलो 60 का मीनिंग ये हो गया कि 60 से लेस देन है, यानी कि 60 के साथ में नहीं है, तो अपन 50 to 60 के साथ चल रहे हैं. यहां से अपन स्टार्ट करते हैं. फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी इज गिवन. नाउ 4 इज एज इट इज. बिलो 20 मीन 0 to 20 आपको गिवन है, तो ये 4 आप इसमें से माइनस कर लीजिए. ये आपको ध्यान रखना है. 10 minus 4 is 6. नेक्स्ट 18 minus 10, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से इसको माइनस कर लीजिए. 18 minus 10 is 8. 28 minus 18, 8 minus 8 0, 2 minus 1 is 1, so that means 10. Next 40 minus 28, 40 minus 28 means 12. एक बार चेक कर लीजिए. 10 minus 8 is 2 and 3 minus 2 is 1 is correct. And 70 minus 40 is 30. जो भी फ्रीक्वेंसीज आपने टेबल आपने बनाई है, अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर्स कहीं रॉन्ग तो नहीं है, अगर रॉन्ग है तो आप इसको चेक कर सकते हैं. चेक करने का तरीका बता देता हूं मैं. 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is 18, and 18 plus 10 is 28, 28 and 12, 28 plus 12 is 40 and 40 plus 30 is 70, यानी कि वापस 70 आ रहा है. इसका मीनिंग ये होगा कि आपने जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप इसको कैलकुलेट भी चेक भी कर सकते हैं. यहाँ पर भी जो सम है वो टोटल सम जो है वो 70 है. कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस. अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट n upon 2. व्हाट इज n? n आपको गिवन है ये. दिस इज द n. n 70 upon 2 इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर लें 35. अब आपको देखना है 35 कहाँ लाई कर रहा है. तो 35 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज में लाई कर रहा है. ये है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे बिलो मार्क्स यहाँ पे इस फॉर्म में अगर गिवन हो बिलो बिलो बिलो, तो बिलो की कंडीशन में आपको यहाँ माइनस करना है. अगर एबव आता है तो आपको प्लस करना है. ये चीज़ ध्यान रखें. एबव का भी अपन क्वेश्चन कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. CF. अब ये देखना 35 कहाँ लाई करता है. तो 35 इससे पहले ये 35 से लेस देन है और ये 35 से मोर देन है. इसका मतलब 35 यहाँ लाई कर रहा है 40 के अंदर. तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके साथ में. अगर तो कॉमनली आपका क्लास इंटरवल जो है मीडियन क्लास आप लिख सकते हैं यहाँ पे. मीडियन क्लास. नाउ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 40 to 50. ये मीडियन क्लास आपका आ गया 40 to 50. तो आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इस 40 और आप n upon 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं. तो चलिए अपन को CF फाइंड आउट करना है. CF आपको कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. 35 40 इससे जस्ट बिफोर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 28 है. आप यहाँ पे 28 लिखें और F आप लिखेंगे जस्ट इस क्लास इंटरवल मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी. इसीलिए अपन ने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं थी.
तो ये आ गया 12, तो यहाँ आप लिखें 12 और h आप लिखेंगे वही इंटरवल, तो इंटरवल यहाँ पर 10 का है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। सभी वैल्यू आपके सामने है। नाउ कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L। व्हाट इज L? L is 40 plus n upon 2, n upon 2 is 35, 35 minus CF, CF is 28, 28 divided by F, F is 12, H is 10. Now complete, finally solve 8। मैंने आपको कहा था ये कंप्लीट सॉल्व करना है पहले। 35 में से 28 को माइनस कर लीजिए, 7 आएगा और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 and 70 upon 12। इसको अपन कट करते हैं तो 35 और ये आ जाता है आपका 6 इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 35/6। एक बार चेक कर लेते हैं। 35 एंड देन 12 is 6, मैंने 2 की टेबल से कट किया है। 35/6 को आप कट कर सकते हैं। 6 6 जा 36, लेकिन ये 35 है, यानी कि 5.9 चाहे तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लें, 5 टाइम्स आप इसको कर लें 30 एंड देन इट इज द 5 and then 0 and 6 7 ja is 42, 6 7 ja and 6 8 ja 48 and 2 0। एक डिजिट और ले लीजिए आप चाहें तो। यहाँ पर ये अपन ने लिया था 8 टाइम्स और ये आपको मिला 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो चलिए 6 3 जा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5.83। तो फाइनल आंसर मीडियन इज इक्वल टू 45.83। ये आपका आंसर। 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, एक बार सिंपल क्लास इंटरवल गिवन था और एक बार ये बिलो के बेसिस पर मैंने आपको कैलकुलेट कराया। मीडियन और मोड दोनों टाइप के जो सम है मैं एक बार और डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक क्लास और लूंगा अभी कंप्लीट स्टैटिक्स के बेसिस पर, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज और बच जाती हैं और मीडियन और मेड में अबव और बिलो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करना चाहेंगे। एक साथ मैं नहीं करवा रहा हूँ। देखो आपने अभी तक जो भी हमने सॉल्व किया है, आपने मीन, मोड एंड मीडियन ये हमने सॉल्व किया। मैंने आपको कहा फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फॉर्मूलेज में तो एक काम करते हैं, मैं मीन, मीडियन और मोड इन तीनों को मैं फॉर्मूलेज को एक बार एक साथ लिख रहा हूँ। आप मेन ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मीन के लिए मैंने कहा था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे ui को जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो ui आप लिखेंगे यहाँ पर xi माइनस a और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे आप h। नेक्स्ट हम लिखते हैं मॉड। मॉड का फॉर्मूला मैंने बताया था L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये कंप्लीट फॉर्मूले के बेसिस पे ही है। और नेक्स्ट फॉर्मूला था मीडियन के लिए जो अभी जस्ट अपन ने किया, L प्लस यहाँ पे आएगा n अपॉन 2 एंड माइनस CF एन अपॉन f एन इंटू h। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें UI के लिए बहुत इजी रहेगा आपका, DI के बेसिस पे ना करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ और एक क्लास अपन और लेंगे, उसके साथ में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। डाउट्स, प्रॉब्लम जो भी हो कभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।